So guys, so today we are going to learn about dark matter. So this is our second video of the science series. So each video is going to come one video on Monday and one video on Saturday. So let's get started. So today our target is dark matter. So the guys who do not know what a dark matter is, so the dark matter is the opposite thing of the matter. It is the thing which is not recognizable. We cannot see it. It is a very opposite thing of it, like this. Dark matter is 26.8% and dark energy is 60.83%. So you can see that this is matter. जो मैटर करेगा उसका उल्टा एंटी मैटर करेगा. So that is antimatter is called dark matter. So antimatter is called dark matter. So this is basically the definition of dark matter. So let's learn about it. So the biggest question about dark matter is does dark matter exist? So according to the scientists, some say yes, some say no. There are different theorems based on it, but I am taking it as guess. Like मुझे लगता है that dark matter exists. I will give you a couple of reasons after that. And first thing first, we have made also in our labs 0.063 grams of dark matter. We have made. So that's why dark matter exists. This is not a big question nowadays, but some scientists took help from another theories to say it no. So let me tell you a fact that the antimatter or the dark matter, 1 gram is equals to 25 billion of dark energy, and antimatter is equal to 62.5 trillion. मीन्स लाइक यूएसए में जितना पैसा है, यूएसए की जीडीपी कितनी है 29 ट्रिलियन, और चाइना की जीडीपी इज इक्वल टू 21 ट्रिलियन. अगर हम इन दोनों को मिला दे, इफ वी ऐड ऑल दिस, सो इट विल बी 50 ट्रिलियन. मतलब 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर इज इक्वल्स टू चाइना प्लस अमेरिका की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा तो सिर्फ 1 ग्राम ऑफ एंटी मैटर कॉस्ट करता है. और गोल्ड सिर्फ $56, एंड ये जो वैल्यू है वो डॉलर्स में है. एंड अगर हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, इट विल गो एंड अप टू अ लेंथ सच. सो लेट्स मूव अहेड. सो व्हाट इज dark matter? So dark matter is the opposite of the matter. So you can see that dark matter. So matter में होता है हमारे पास protons, electrons and neutrons. But in antimatter हमारे पास होता है antiproton, positron. इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी जगह पोसिट्रॉन. ये हाइड्रोजन एटम है 1 और ये एंटी हाइड्रोजन एटम है. लाइक हर चीज की अपोजिट होगा. अगर हीट है तो कोल्ड भी है. इफ देर इज अ ब्लैक होल देन देर इज अ वाइट होल आल्सो. एंड मैटर एंड एंटी मैटर is going to be there. So but there is a question, how much power does antimatter holds? Like a man weighing of 75 grams of dark matter. अगर एक बंदा है उसका वेट 75 किलोज है और वो एक डार्क मैटर से बना हुआ है, और एक बंदा है उसका भी वेट 75 किलोज है एंड वो नॉर्मल मैटर से बना हुआ है. इफ दे बोथ विल टच ईच अदर, then the energy will release will be 1.5 lakh न्यूक्लियर बॉम्ब्स. लाइक जो इतनी एनर्जी एंटी मैटर में होती है, डार्क मैटर होती है. और क्योंकि द डार्क मैटर कैन नॉट
कोलाइड विद द मैटर, लाइक वो उसके साथ मिल नहीं सकता, ही कैन नॉट टच इट। तो जो एनर्जी निकलेगी 1.5 लाख न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अभी on the earth there are something about 20,000 to 30,000 nuclear bombs in total, and all these bombs are enough to destroy the earth. So see how much energy just a 75 kilos of antimatter can produce. And there is one more fact that the persons do not understand, like they say एक गैलेक्सी को जो है ब्लैक होल पकड़ के रखता है। ये सब आप अब तक मानते आए होंगे। आई डू नॉट से वो पकड़ता नहीं है, इट होल्ड्स इट बट नॉट एज मच इट, लाइक मिल्की वे का जो हमारा जो ब्लैक होल है सजिटेरियस ए, वो मिल्की वे का 0.001% मास होल्ड करता है, तो वो तो है नहीं। तो क्या है जो चीज है, वो है डार्क मैटर। डार्क मैटर वी विल टॉक इट अबाउट ऑन इट। डार्क मैटर उसमें हेल्प करता है। सो यू अंडरस्टैंड द डार्क मैटर इज अपोजिट ऑफ द मैटर। सो अब हमारे पास एक थ्योरी भी है जिसके हिसाब से आई कैन प्रूव यू दैट द डार्क मैटर एग्जिस्ट्स। सो आप ये ग्राफ देख रहे हो, ये M87 जो गैलेक्सी है जिसका फोटो हमने जिस ब्लैक होल का खींचा, ये M87 का गैलेक्सी का वो है। अब इस फोटो के हिसाब से तो जो हमारा जो M87 ब्लैक होल है वो इस लाइन पे होना चाहिए इस ग्राफ के हिसाब से, तो बट वो तो इससे ऊपर है। अब ऊपर क्यों है? अब अगर ऊपर है तो उस गैलेक्सी में कुछ मास मिसिंग है जो ये कर रहा है, और वो मास किधर है? एग्जैक्टली उसके सेंटर में। और कितना है वो मास? एक्स्ट्रा, और वो उसको पकड़ रखा है। और M87 की जो हमारे पास फोटो है उसमें 2 बिलियन सोलर मासेस, वो हमको 5 गुना बड़ी दिख रही है क्योंकि उसमें 2 बिलियन सोलर मासेस मास एक्स्ट्रा है डार्क मैटर का। और जो हमारी जो गैलेक्सी है M87 उसमें भी कितना एक्स्ट्रा मास है? एक्स्ट्रा 2 बिलियन सोलर मास उसमें भी है, उसके सेंटर में। नाउ यू अंडरस्टैंड इट, लाइक सेंटर में था ब्लैक होल, और ब्लैक होल को चाहिए था 2 बिलियन सोलर मास, और गैलेक्सी को भी चाहिए था 2 बिलियन सोलर मास। तो वो सोलर मास रिलेट हो गया ब्लैक होल से। सो यू अंडरस्टैंड, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लैक होल, सो ऑफ द डार्क मैटर एंड द ब्लैक होल। सो इस थ्योरी के बेसिस पे वी कैन से दैट the dark matter exists, but some scientists do not believe that, so let them not believe that. So it is a very interesting concept about also. So let's move ahead. So this is the graph you can see as dark matter is 26.8% in the universe, dark energy is 68.3, and the atoms are just 4.9. जो मैटर, जो अब तक आप ट्वेल्थ ग्रेड तक आप पढ़ते आ रहे हो, एटम्स एटम्स एटम्स, वो तो यूनिवर्स का 5% भी नहीं है, 4.9 ही है। एंड जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा है, दैट इज कवरिंग मोस्ट ऑफ 95% ऑफ चीज जो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अंदर है। एंड दैट वी डू नॉट नो, बट वी नो एटम्स, जो कम है वो हमें पता है, बट द थिंग्स वी डो नॉट हैव दैट वी डू नॉट नो। So this is a fatal flaw of us. So we should also research more. So until then, if you understand our concepts, you can also see our black hole video, which is in the science series. You can see our physics motion chapter series and cell chapter series. Until then, take care, goodbye, and Jai Hind, Jai Bharat.